Hello student, today we are going to learn the next topic, ring structure of glucose. In the previous video, this Fischer formula was explained and now the next part is ring structure which having equilibrium with these two structures, and we are going to discuss about this ring structure. The ring structure are of two types. Here, ring structure of glucose, which is called Fischer projection formula for the ring structure, which is also called hemiacetal structure. And in the second structure, the Haworth formula of glucopyranose. Here also ring structure, but this is given by the Haworth. This is called Haworth formula, and which having the similarity with pyrene structure, and therefore it is called glucopyranose. These two can be explained with the help of some points. So let us see what are the different points. Glucose exhibit more chemical properties which could not be explained by the Fischer projection formula. By simple this formula for glucose, many properties cannot be explained, like Tollens reagent test, Feiling solution test, which is given by the glucose, and it requires a different type of structure which could explain this property, and the ring structure of glucose explain all the properties. The two ring or cyclic structure formed by formyl group and alcoholic group at C5, means at C5 position. What is C5 position? This is the C5 position, and here OH group. So this O, and the one position, this is one position for the CHO group. This is the combination. How the ring structure is formed? Formyl group means CHO group at one position and alcoholic group at C5 पोजीशन, यानी ये CHO यहाँ कैसे हो जाएगा? CH और ये O, और यहाँ पे H और ये O, यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो नंबर वन है, नंबर वन के पास क्या क्या है? कार्बन है, यहाँ कार्बन है, ये OH ग्रुप है, यहाँ OH ग्रुप है, और ये जो H है, ये H कहाँ से आया? ये नंबर 5 पे जो H है, AH यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है। यहाँ का OH तो यहाँ OH हो गया, ये जो OH है ये OH यहाँ आ गया, नंबर वन, ये नंबर वन, ये नंबर वन, ओके, ये कार्बन यहाँ पे आ गया, ओके। अब यहाँ पे CHO का पूरा फुलफिलमेंट हो गया। अब ये जो ऑक्सीजन है सिंगल है, यहाँ पे बचा हुआ जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आया है, ओके। Once you understand this structure, you can write the pyranose, glucopyranose structure very easily. तो इस तरह यहाँ पे इक्विलिब्रियम हमें दिख रहा है, ये नंबर वन स्ट्रक्चर है और ये है नंबर टू स्ट्रक्चर। तो देखिए इस तरह ये जो पहला कार्बन है यहाँ राइट हैंड साइड में OH है, और ये जो पहला कार्बन है यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में OH है, सिर्फ यहाँ पे चेंज है, बाकी HOH, HOH, OHH, OHH, HOH, 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 और यहाँ पे HH, CH2H, CH2H। यानी ये जो फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर है उसमें सिर्फ जो पहला नंबर का कार्बन है वहां पे जो H और OH अटैच है वहां डिफरेंस हमें दिखता है, बाकी ये 1 to 5 को जो ऑक्सीजन अटैच है वो सिमिलर है, CH2OH सिमिलर है, बाकी सब सिमिलर है। तो आपको सिर्फ यही बात ध्यान में रखनी है, दिस इज अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड दिस इज बीटा डी प्लस ग्लूकोज। तो यहाँ राइट हैंड साइड में OH है और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में OH है। दिस इज ओनली द पॉइंट ऑफ डिफरेंस एट कार्बन नंबर 1 एंड दिस इज कॉल्ड द एनोमेरिक कार्बन 1। देयरफॉर the two anomeric structures are possible, which is shown in the figure. So the two ring or cyclic structure formed by formyl group means CHO group and the alcoholic group at the C5 carbon.
ये जो दिख रहा है C5 कार्बन, वहां पे फॉर्म हो रहा है साइक्लिक स्ट्रक्चर C1 एंड C5. The two alpha and beta anomers. This is the alpha here and this is the beta anomer of glucose differ at anomeric carbon. सिर्फ C1 कार्बन में डिफरेंस है. जो C1 कार्बन है ना, यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस है, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया है. यहाँ राइट में है OH और यहाँ पे लेफ्ट में है. ये जो पोर्शन है ये राइट पोर्शन है और ये क्या है, लेफ्ट पोर्शन है. बस इतना ही डिफरेंस ये दो एनोमरिक फॉर्म में है. The Haworth formula is called glucopyranose and it is a 6-membered ring. Lower side of ring is alpha side and upper side is beta. Here shown alpha side means right. देखो, आपको एक ही बात अगर अच्छे से समझ में आई तो आप ये दोनों स्ट्रक्चर बहुत ही इजीली लिख सकते हो. अगर आपको सिर्फ ये फिशर फार्मूला मालूम है तो उसके ऊपर बेस्ड हम अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, बीटा डी प्लस ग्लूकोज लिखेंगे और ये दो स्ट्रक्चर से हम ये पायरानोज स्ट्रक्चर ग्लूकोज का लिख सकते हैं. सो यहाँ पे हमें क्या ध्यान में रखना है, ये जो रिंग है उसके लोअर साइड में कुछ ग्रुप है और अपर साइड में कुछ ग्रुप है. तो यहाँ पे हमने ये बीटा साइड है जो कि ऊपर है, ऊपर वाले, और ये अल्फा साइड है जो कि राइट साइड. मैंने यहाँ पे लेफ्ट नहीं लिखा, ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो ये वाइस वर्सा. तो ये जो अल्फा साइड है जो लोअर साइड में हम लिख रहे हैं वो ये रिंग स्ट्रक्चर फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में कहाँ पे है, राइट साइड में. जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम और यहाँ पे हम देखेंगे ये फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. CH2OH 6 जाएगा. ऐसे हमें राइट से लेफ्ट जाना है. 1 2 3 4 5 6 दोनों स्ट्रक्चर सिमिलर है. सिर्फ जहां पे पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वहां पे मैंने एन सर्कल किया है, ये OH ग्रुप. यहां देख सकते हैं जो अल्फा साइड है वहां ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है, राइट. ये आपको लर्निंग में इजी जाएगा. तो यहाँ लोअर पोजीशन में हमने क्या दिखा है, OH हमने दिखाया है. यहाँ पे लिखा है OH ग्रुप जो कि ये रिंग स्ट्रक्चर में कहां पे है, राइट साइड में. आप देख सकते हैं नंबर 1 का कार्बन देखिए जहां मैंने एन सर्कल किया, ये एन सर्कल पार्ट एट 1 कार्बन आइटम राइट में है जो कि हमें कहां लिखना है, नीचे लिखना है OH. बच्चों का सिर्फ यही कंफ्यूजन होता है कि किसे हम नीचे लिखेंगे और किसे हम अपर लिखेंगे. और जो पढ़ाई करने का टेक्निक होता है, कुछ रिमेम्बरिंग टिप्स होते हैं, अगर वो आप ध्यान में रखते हो तो बिल्कुल आपको कंफ्यूजन नहीं होगा. तो मैंने जो कंफ्यूजन वाले पॉइंट्स है या जो रिमेम्बरिंग वाली पॉइंट्स है उसको एन सर्कल किया, या लिखा है राइट जो कि हमने राइट साइड में लिखा है OH, वो यहाँ पे राइट यानी कहा जाएगा अल्फा साइड में जाएगा, यानी नीचे के साइड में. यानी देखो यहाँ मैंने लिखा है कि अल्फा साइड में जो नीचे है और बीटा साइड जो कि ऊपर है. यहाँ पे मैंने दोनों साइड यहाँ पे लिख दिए हैं. तो ये 1 कार्बन पे OH राइट पे यहाँ नीचे गया. ओके, बस इतना ही आपको देखना है, बाकी तो सब कॉमन है. अब देखिए ये OH नीचे है, 2 पे 3 पे H नीचे है, 4 पे OH नीचे है. यहाँ पे टैली कर लीजिए आप. सेकेंड पे OH नीचे है, थर्ड में H है, थर्ड में H नीचे है, फोर्थ में OH राइट में है तो फोर्थ में OH यहाँ पे नीचे जाएगा क्योंकि ये राइट में है. और फिफ्थ में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो लेफ्ट में है, तो जो लेफ्ट में है हाइड्रोजन एटम, तो उसे हमने कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे इस तरह 5 नंबर का जो कार्बन है ये 6 नंबर का CH2OH हमने लिख लिया और 5 नंबर में यहाँ हाइड्रोजन है. तो इस तरह हमने उसको लेफ्ट में लिखा है. तो ये इस तरह आपको ऑक्सीजन एटम जो कि राइट में और सेंटर में है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये आपको ध्यान में रखना है. तो यहाँ पे देखिए 4 में H लेफ्ट में है ना, तो वो ऊपर गया है. तो सिर्फ आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है. तो यहाँ पे कंफ्यूजन का कोई पॉइंट नहीं है. ये 5 नंबर का कार्बन और 6 नंबर में CH2OH ये हो गया, यानी H को हमें एक ही जगह बची है यहाँ पे लिखना है. तो इस तरह हम ये स्ट्रक्चर से ये स्ट्रक्चर नोट कर लिया. Once you able to write this structure,
ये और ये स्ट्रक्चर, इसे हम क्या कहेंगे, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोस, और ये क्या है, बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोस। ये क्या है, बीटा डी प्लस ग्लूकोज ओनली, और इसे हमने क्या दूसरा नाम दिया है, ग्लूकोपाइरानोस, क्योंकि ये पायरिन स्ट्रक्चर से सिमिलैरिटी रखता है इसलिए। ये दोनों स्ट्रक्चर सिमिलर है, सिर्फ यहाँ हेक्सागोनल फॉर्म में वहां पे लिखा है साइक्लिक रिंग, जहां पे 6 एटम्स इन द रिंग हमने दिखाया है, और यहाँ सिर्फ ग्लूकोज लिखा है, ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। ये और ये स्ट्रक्चर दोनों सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक जो एनोमेरिक कार्बन है HC1 नंबर विच इज कॉल्ड ए एनोमेरिक कार्बन, वहां पे ये OH या राइट में है, या इसलिए नीचे गया, या हमें लेफ्ट है तो यही ऊपर चले गया, बस इतना पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। तो आपको ये पूरे इसमें इसका अगर हम नटशेल निकालेंगे तो आपको यही दो स्ट्रक्चर यहाँ ध्यान में रखने हैं, और ये जो स्ट्रक्चर है ये हमें ग्लूकोज की जो रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट और फायरिंग सॉल्यूशन टेस्ट, वो टेस्ट ये हेमी एसिड स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज के द्वारा ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे CHO ग्रुप का एक डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, विच एक्सप्लेन द रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ द ग्लूकोज। तो यहाँ पे आपको कैसे लिखना है स्ट्रक्चर, आई एम रिपीटिंग अगेन, फिशर फार्मूला जो कि आपने लर्न करके रखा है पहले से, ग्लूकोज का सिंपल स्ट्रक्चर, उससे इक्विलिब्रियम रखते हैं दो स्ट्रक्चर, तो ये और ये स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस रहेगा, देखिए यहाँ पे ये नंबर 1 वाला कार्बन है, और यहाँ पे H और ये OH, इस तरह नंबर 5 और 1 पे दोनों का रिएक्शन होके ये साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया है। यहाँ पे राइट में OH है, यहाँ लेफ्ट में OH है, बाकी दोनों स्ट्रक्चर सेम है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, ये और ये आपको एग्जाम में ध्यान में रखना है। इससे ये स्ट्रक्चर लिखेंगे, इससे ये स्ट्रक्चर लिखेंगे। OH यहाँ राइट में है, इसलिए नंबर 1 पे OH यहाँ लोअर पोजीशन में जाएगा, यहाँ लेफ्ट में है तो यहाँ OH अपर पोजीशन में जाएगा। इन दिस मैनर द साइक्लिक और रिंग स्ट्रक्चर of glucose, that is Fischer hemiacetic structure, and have a glucopyranose structure explained in this video.